Good morning to all of you. So, in your class 11th economics, in your syllabus, you have to study the microeconomics as well as the statistics for economics. Okay. So, in today's class, we are going to start statistics for economics. Okay. So, first of all, we deal with the chapter 1, that is introduction of economics. So in this chapter, we are going to study the meaning of economics. What is the meaning of the economics? And in the meaning of economics, we have to study the scarcity and economic problem, economic activities, definition of economics, statistics in economics, origin and growth of the statistics, what is the meaning of statistics, definition of the statistics in the singular sense, definition of statistics in the plural sense, characteristics of the statistics in the plural sense, scope, subject matter of the economics, function of statistics, importance of statistics, and the last topic is limitation of the statistics. Okay, so in this chapter we are going to cover all these topics in your statistic. Okay, so before calculating or doing some numerical questions of your statistics, first of all we should know what is statistics, why we are studying statistics in the economics, what is the role of the statistics in the economics, and from where the statistics is originated, as well as what is the features of the statistics, importance of the statistic. So we deal all these different functions of the statistics, importance as well as limitation of the statistics. So in this chapter we are going to cover all these topics. Okay, so as what we have saying that the what I have saying that the in your class 11th economics you have two parts. Okay, economics you have two parts, that is first in class 11th economics you have to study the microeconomics, and second book is your statistics for economics. Okay, so in the statistics for economics we will do, first of all we should know what is the meaning as well as what are the different types, as well as we will also do some numerical questions related to the quartile deviation, central tendency, mean median mode, dispersion, index number, as well as correlation. Okay, we will deal all these things, but firstly we should know what is the meaning of the statistics for economics and why we are using the different kind of statistics for the economics, what is the role of statistics in economics. So we will discuss all these things. So let's start with the introduction. Okay, in order to understand and analyze the problem arising out of economic activities of men, the concept of economics and statistics need to be understood first. After studying this chapter, a chapter of economics should be able to, a student of economics should be able to know what is the subject of economics is about, understood how knowledge of statistics can help in the describing the economic activities. Okay, so in order to understand and analyzing the problem, okay, अगर हमको पता है कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं, प्रोडक्शन हो गया, कंजप्शन हो गया, कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट, तो इन सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने में वी हैव टू फेस डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. ठीक है, इन फ्रंट ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स कम. ठीक है, उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. तो द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक नीड टू बी अंडरस्टूड फर्स्ट. तो उसके लिए क्या है कि सबसे पहले हमें कि इकोनॉमिक्स होता क्या है और स्टैटिस्टिक की नीड क्यों है, तो हमें ये सारे को पहले समझना होगा. सो आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर, ये चैप्टर पढ़ने के बाद
अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स शुड बी एबल टू नो, जो स्टूडेंट है इकोनॉमिक्स के, जो क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, वो क्या होंगे, दे आर एबल टू नो डैट व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इज़ अबाउट। मीन्स इस जो इकोनॉमिक्स में हम लोग इस इकोनॉमिक्स में किसकी बात करते हैं, मतलब किस चीज़ की स्टडी करते हैं, एंड अंडरस्टूड हाउ नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स कैन हेल्प इन डिस्क्राइबिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटी। और ये भी जानते हैं कि अगर हमें कोई भी स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज है तो कैसे ये जो जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है कैसे ये इनको ईजिली हेल्प करता है डिस्क्राइब करने। पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी करता है, सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स और इसके बारे में स्कोप क्या है इकोनॉमिक्स का, एज वेल एज वी नो दैट इज़ दी हाउ नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स कैन हेल्प इन डिस्क्राइबिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जो भी नॉलेज है स्टैटिस्टिक्स का वो कैसे हेल्प करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिस्क्राइब करने में। सो टुडे वी इंक्रीजिंगली यूज स्टैटिस्टिक्स टू एनालाइज सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम such as rising prices, growing population, unemployment, poverty, and to find measures that can solve such problems. Further, it also helps to evaluate the impact of such policies in solving the economic problem. Okay? So today we increasingly use statistics, ठीक है। अभी एट प्रेजेंट जब हम बात करते हैं तो हम लोग स्टैटिस्टिक्स का बहुत यूज़ कर रहे हैं, किस लिए, टू एनालाइज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हम लोग देख रहे हैं उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एनालाइज करें, ठीक है। हम जो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़े इतने दिन में टिल चैप्टर 11 हमने क्या देखा कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, एज वेल एज जो पॉपुलेशन हमारी कंट्री की इंक्रीज़ कर रही है, पॉवर्टी हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, प्राइस क्या है वो बहुत इंक्रीज़ कर रही है। तो इन सारे का क्या है कि इन सारे प्रॉब्लम्स को हमको क्या करना है, हमने पहले जो भी प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई कर लिया, डिटेक्ट कर लिया थ्रू दी इकोनॉमिक्स, थ्रू दी माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब हम स्टैटिस्टिक्स के थ्रू क्या करेंगे, उन सारी प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है। हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लेकर आएंगे कि कितने परसेंट लोग अनएम्प्लॉयड हैं, कितनी पॉवर्टी है, कितनी प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, डिमांड की, सप्लाई में क्या चांसेस हैं, क्यों डिमांड बहुत ज़्यादा हो रहा है, कितना परसेंटेज से डिमांड इंक्रीज़ हो रहा है, सप्लाई डिक्रीज़ हो रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम क्या है हम स्टडी करेंगे। तो वी इंक्रीजिंगली यूज़ स्टैटिस्टिक्स कि हम स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं टू एनालाइज दी सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम की जो भी सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उनको एनालाइज करने के। प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, राइजिंग प्राइस क्या हो रहा है, वो कंटिन्यूसली राइज कर रहा है। राइजिंग प्राइसेस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द इन्फ्लेशन। आपने सुना होगा कि हम लोग बोलते हैं इकॉनमी में क्या आ गया, इन्फ्लेशन आ गया। मतलब जो भी प्राइस है, कोई भी जनरल प्राइस लेवल क्या हो जाता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। मीन जो भी हम कमोडिटी परचेज करते हैं, जो कमोडिटी हम अगर फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़ की परचेज कर रहे थे अब वो 25 to 30 आ गया। मीन्स इन्फ्लेशन, जनरल प्राइस लेवल क्या हो जाता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। ग्रोइंग पॉपुलेशन, नेक्स्ट वन इज़ ग्रोइंग पॉपुलेशन। इसकी भी प्रॉब्लम हम लोग सफ़र कर रहे हैं कि आफ्टर चाइना हम लोग क्या हैं, सेकेंड नंबर पे है पॉपुलेशन में, कि हमारी कंट्री में पर डे हर एक सेकेंड पे 1000 बच्चे क्या हैं, चाइल्ड क्या हैं वो बॉर्न कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, हमारी पॉपुलेशन कंटिन्यूसली ग्रो करती चली जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट, अब पॉपुलेशन इंक्रीज़ करती जा रही है और उसके थ्रू क्या हो रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स जो एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो भी होती जा रही है। मतलब जो नंबर ऑफ़ लेबर फोर्स है, जो लेबर है वो भी इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, तो उनको क्या है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, दे आर अनएम्प्लॉयड। ये भी प्रॉब्लम कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है। पॉवर्टी, अब किसी के पास क्या है, अनएम्प्लॉयड है, मतलब किसी के पास कोई जॉब नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि लोगों के पास खाने के लिए भी पैसा नहीं होगा कि वो कुछ अपनी जो भी उनकी बेसिक मिनिमम नीड्स हैं, फॉर एग्जांपल फूड, शेल्टर, क्लोथ, एजुकेशन, हेल्थ। अब ये क्या है, किसी के पास अगर प्रॉपर जॉब नहीं होगी तो दे आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर बेसिक फैसिलिटीज़, सो अल्टीमेटली इट लीड्स टू दी पॉवर्टी। फिर वो क्या हो जाएंगे, पुअर हो जाएंगे। एंड टू फाइंड मेजर दैट कैन सॉल्व सच प्रॉब्लम, ठीक है। हम
इन स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करके हम ये एनालाइज कर लेते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम क्या हैं, क्यों इंक्रीज़ हो रही हैं, और फिर जब हम उसके कॉजेज़ जान लेते हैं फिर हम उसके मेजर्स निकालते हैं कि हम कैसे इन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। ठीक है, सबसे पहले अगर कोई भी चीज़ है, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको देख के क्या तुरंत मेडिसिन दे देता है? नहीं ना, पहले वो आपको डिटेक्ट करता है, देखता है, सब कुछ टेस्ट कराता है कि क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, वो डिफरेंट मेजर्स लेता है, आपको मेडिसिन देता है। तो स्टैटिस्टिक्स भी क्या हेल्प करता है, जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो किसकी वजह से हो रही है उनको आइडेंटिफाई करता है। उसके थ्रू अगर कुछ जैसे मेजर्स निकालेंगे कि कैसे हम इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फर्दर इट ऑल्सो हेल्प टू इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ सच पॉलिसीज़ इन सॉल्विंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो ये स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, हेल्प करता है कि इवेलुएट करने के लिए कि इन सारी पॉलिसीज़, ठीक है, जो अब प्रॉब्लम्स जो आएंगी, अब उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ पॉलिसीज़ बनेंगी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाएगी कि कैसे हम उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ पॉलिसीज़ जो बनेंगी, तो स्टैटिस्टिक्स के थ्रू उन सारी पॉलिसीज़ को भी इवैल्यूएट किया जाता है कि क्या ये सारी पॉलिसीज़ जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो रही हैं उनको ये सॉल्व कर पाएगा प्रॉपरली और नॉट। ठीक है, इनके लिए क्या करते हैं कि डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स को यूज़ किया जाता है। पहले तो प्रॉब्लम पता चलती है, उसके कॉजेज़ क्या हैं, फिर उनको मेजर्स कैसे हैं कि हम उनको कैसे रिड्यूस और सॉर्ट आउट कर सकते हैं, एंड देन हेल्प क्या करता है, इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ सच पॉलिसी। जो भी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, जो भी प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, उसका कितना इम्पैक्ट है। मतलब अगर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पाई गई कि कंट्री में क्या है, अगर 20% अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इस 20% को कैसे किया जाएगा, इससे आइडेंटिफाई कर लिया जाए। अब आइडेंटिफाई करने के थ्रू इसका क्या हुआ, एक मेजर्स निकाला गया कि हम क्या कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। फिर जो भी पॉलिसीज़ बनाई गई कि अनएम्प्लॉयमेंट को हमें रिड्यूस करना है, तो अब उन अनएम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन थी, अब इसमें ये हमें इम्पैक्ट देखना है कि जो पॉलिसीज़ बनाई गई जिनके थ्रू हम अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करेंगे, वो क्या इतनी अच्छी हैं, वो इतनी इफ़ेक्टिव हैं कि जितनी जो भी पॉलिसीज़ बनाई गई। तो ये सारी चीज़ें हम किसके थ्रू करते हैं, स्टैटिस्टिक्स के। तो डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स के हम लोग टूल्स और टेक्निक्स लगाते हैं जिनके थ्रू हम ये सब आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी ascertained easily using statistical technique whether the policy of the progressive taxation is effective in checking the problem of unequal distribution of or not। देखिए एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एग्जाम्पल ये कह रहा है कि इट कैन बी असर्टेन, मतलब ईजली यूजिंग स्टैटिस्टिकल वेदर द पॉलिसी ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। देखिए प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होता है मीन्स इट इज़ टोटली डिपेंड कि टैक्सेशन मीन्स कि जो भी इनकम हम लोग टैक्स पे करते हैं, ठीक है, एज अ ह्यूमन बीइंग एवरी इंडिविजुअल पे द इनकम टैक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है, ये इनकम टैक्स पे लगता है, मतलब जो भी मेरी इनकम है उस स्लैब में आ रहेगा। फॉर एग्जांपल मेरी एनुअल इनकम 5 लाख है, तो उसकी ये लिमिट है, अगर इसके ऊपर मेरी होगी इनकम होगी 5 लाख एंड अबव, तो उसके अकॉर्डिंग टैक्स भी पे करना पड़ता है कि इस पे क्या है 3% है और 4% है। अगर 10 लाख है तो उस पे क्या होगा, तो टैक्स भी इंक्रीज़ हो जाएगा 10%, एंड देन इससे ज़्यादा तो वो उतना टैक्स क्या करेगा, पे करेगा। ठीक, तो प्रोग्रेसिव टैक्स ये होता है कि आपकी इनकम इंक्रीज़ होगी। अगर मेरी इनकम फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी इनकम क्या थी, पहले 60,000, ओके, तो मैं क्या करी थी 4% इनकम टैक्स पे करी थी फॉर एग्ज़ाम्पल, ओके। अब मेरी इनकम क्या हो गई है, 80,000 हो गई है, तो टैक्स जो पे करी थी वो अब क्या हो जाएगी आपकी 10%। मतलब इनकम इंक्रीज़ होगी तो टैक्स पेमेंट भी इंक्रीज़ होगा, इनकम इंक्रीज़ होगी तो टैक्स भी इंक्रीज़ होगा। ये होता है आपका प्रोग्रेसिव टैक्स। तो ये बोला जा रहा है कि अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं कि स्टैटिस्टिकल टेक्निक चेक यही करता है कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इज़ इफ़ेक्टिव इन चेकिंग द प्रॉब्लम ऑफ
अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और नॉट, कि जो भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, कि जो डिफरेंट नंबर ऑफ पीपल हैं उनकी इनकम में क्या होता है, बहुत ज़्यादा वो होता है इनइक्वालिटी होता है। मीन्स जो रिच पीपल है वो मोर रिचर होते जा रहे हैं और जो पुअर हैं वो मोर पुअरर होते जा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि डिफरेंट सेक्टर्स हैं जो भी इकॉनमी में, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एज वेल एज सर्विस सेक्टर, तो जो भी उनकी इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो इक्वल नहीं हो रहा है। ठीक है, अब सर्विस सेक्टर में जो वर्क कर रहा है उसको बहुत ज़्यादा इनकम है, एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है, डे बाय डे वो बैकवर्ड होता चला जा रहा है। तो इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में भी बहुत इनइक्वालिटी फाइंड आउट होती है। तो इसमें यही एग्जांपल दे रहा है कि हम डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करके हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की प्रॉब्लम है, ठीक है, वो उस प्रॉब्लम को अगर हमें चेक करना है तो उसमें प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम इफ़ेक्टिव होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये दो वेरिएबल हो गए, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब इन दोनों के बीच में क्या करेगा, ये स्टैटिस्टिकल कोई टेक्निक लगाएंगे हम, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती है, वी विल डिस्कस फर्दर, कि हम कुछ टेक्निक लगा के इन दोनों के बीच में स्टडी करेंगे कि क्या अगर हमको प्रॉब्लम ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पढ़ना है, अगर हमको रिड्यूस करना है, तो क्या प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम इज़ इफ़ेक्टिव और नॉट, कि वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम इफ़ेक्टिव है कि नहीं। तो थ्रू द डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स वी कैन आइडेंटिफाई द different problem as well as we can also check the impact of the different policies etc. Okay, now we will go through the meaning of these economics as you also studied in your microeconomics. Okay, what is economics? Okay, so economic revolved mainly around the Alfred Marshall called the study of man in the ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ओके, इकोनॉमिक्स क्या है, वो पूरी इकॉनमी पूरी अराउंड किसके अराउंड में घटती है, जो अल्फ्रेड मार्शल ने बोला है। अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला है, इट इज़ द स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। जो एक ऑर्डिनरी बिजनेस है लाइफ का, उसी के इकॉनमी क्या है, उसी की स्टडी करना होता है। ठीक है, स्टडी ऑफ मैन, मैन की स्टडी करना इन दी ऑर्डिनरी बिजनेस, जो भी लाइफ का एक बिजनेस है, लाइफ इज़ जस्ट अ बिजनेस जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डे बाय डे उस पर स्पेंड कर रहे हैं। तो वो क्या है, उस पर एक उसी में एक मैन की स्टडी करना कि मैन कैसे बिहेव करता है, मैन की कैसी डिमांड है, मैन की कैसी सप्लाई है, तो इसी की क्या करना है, स्टडी करना। ओके, तो इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस ऑफ ह्यूमन, इट इज़ बिहेवियर विच एम्स एट द एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज in such a way that consumer can maximize their satisfaction, producer can maximize their profit and society can maximize their social welfare. Okay, देखिए इकोनॉमिक्स क्या है, एक सोशल साइंस है। सोशल साइंस मीन्स इट इज़ द स्टडी ऑफ मैन, कि हम लोग इसमें क्या करते हैं, मैन की स्टडी करते हैं। मीन मैन क्या है, एक सोशल एनिमल होता है, वो कैसे रिएक्ट करता है, वो हर एक, अगर आपके सामने कोई भी प्रेजेंट कोई भी कंडीशन आ गई, कोई सिचुएशन आ गई, तो वो कैसे रिएक्ट करता है, इसलिए उसको एक सोशल एनिमल माना जाता है। तो इकोनॉमिक्स क्या है, एक सोशल साइंस है। डैट मीन्स इट इज़ द स्टडी ऑफ मैन, मैन की स्टडी करता है। इट इज़ सोशल साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर का एक सोशल साइंस है, मतलब ह्यूमन का बिहेवियर कैसा है, विच एम्स एट द एलोकेशन ऑफ द स्कैर्स रिसोर्सेज, जिसका मेन मोटिव यही है कि जो भी रिसोर्सेज हमारे स्कैर्स हैं, हमें पता है कि द रिसोर्सेज whatever the resources are availed they are limited but the wants are unlimited, कि जो भी resources हमारे पास present है, आपको पता है कि आपके पास जितने भी natural resources हैं, human resources हैं, या आपके घर कोई भी, आप अपनी कोई different product को देख रहे हैं, आपके पास पेन है, पेंसिल है, कॉपी है, आपके पास क्या है, वो आपको पता है कि वो लिमिटेड अमाउंट में। अब आप एक कॉपी को यूज़ कर रहे हो, आप कितना प्रॉपर उसको एलोकेट करके कि कितना प्रॉपरली लिखना है, उसको हमको कितना यूटिलाइज़ करना है, तो ये क्या है, स्कैर्स रिसोर्सेज है। मतलब मेरा मोटिव क्या है, एक ये क्या है, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, मीन्स जिसमें हम लोग स्टडी किसकी करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर का, जिसका मेन एम क्या होता है कि जो भी रिसोर्सेज उसके पास स्कैर्स हैं, रिसोर्सेज हमें पता है कि हमारे पास स्कैर्स हैं,
उन स्कैर्स रिसोर्सेज को हम कैसे प्रॉपरली एलोकेट करें, हम कैसे उसमें चेक करें। जैसे हम लोगों ने स्टडी की थी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि हमारे पास कोई भी बहुत लिमिटेड अमाउंट में ही रिसोर्सेज हैं, हम उनका कैसे प्रॉपरली उसको यूटिलाइज करेंगे इन सच अ वे डैट कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन। ऐसे हम लोग रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे, स्कैर्स रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे, जिसमें क्या है कि कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर क्या करेगा, अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करेगा। मेन मोटिव आपको पता है, द एम ऑफ द कंज्यूमर इज़ टू मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन, कि हम लोग डिफरेंट कमोडिटी को कंजप्शन कर रहे हैं। क्यों कंजप्शन कर रहे हैं? टू मैक्सिमाइज आर सेटिस्फैक्शन। हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि हम अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करें। प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। प्रोड्यूसर जो भी कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहा है, उसका मेन मोटिव क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी को सोल्ड आउट करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे। एंड सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर, एंड द मेन मोटिव ऑफ द सोसाइटी इज़ टू मैक्सिमाइज देयर सोशल वेलफेयर। कि एक सोसाइटी, एक डिफरेंट हम सोसाइटी को देखते हैं, जिस हम एरिया में देख रहे हैं, तो हम लोग का एक एज अ सोसाइटी मेन मोटिव क्या होता है कि सोशल वेलफेयर हो। मतलब गवर्नमेंट हम लोग को बहुत डिफरेंट जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है, वाटर की फैसिलिटी हो, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी हो, प्रॉपर रोड की फैसिलिटी हो, डिफरेंट जो प्रोडक्ट हैं जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उनकी फैसिलिटी हो। तो सोसाइटी का मेन मोटिव क्या होता है? टू मैक्सिमाइज देयर सोशल वेलफेयर। जो भी हमारा कैसे वेलफेयर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो इकोनॉमिक्स क्या हो गया? सिंपल सा, इकोनॉमिक्स इज़ दी सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स सोशल साइंस होता है जो क्या करता है? स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन के बिहेवियर की स्टडी करता है कि कैसे ह्यूमन बिहेव करता है इन डिफरेंट सिचुएशन। विच एम्स एट, जिसका मेन एम क्या होता है कि एलोकेशन ऑफ दी स्कार्स रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज बहुत लैक अमाउंट में, बहुत कम है, उनको एलोकेट करना, प्रॉपरली एलोकेट करना इन सच अ वे, ऐसे कि दैट कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन। कि कंज्यूमर क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करे। प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। प्रोड्यूसर क्या करे? ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे। एंड सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। सोसाइटी क्या करे? ज़्यादा से ज़्यादा अपने वेलफेयर को मैक्सिमाइज करें। ठीक है, तो सिंपल सा इकोनॉमिक्स ये बेस्ट डेफिनेशन है जिसमें हम ओवरऑल की बात करते हैं। सो इन सिंपल वर्ड, इकोनॉमिक्स इज़ अबाउट मेकिंग चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी। देखिए, ओवरऑल इस डेफिनेशन का जस्ट यही निकला कि जो भी हमारे पास स्कार्सिटी है, डिफरेंट रिसोर्सेज की जो स्कार्सिटी है, उसी में हम लोग को एक बेस्ट चॉइस करना है। ठीक है, जैसे आपके पास क्या होगा, आपके पास 2 चॉकलेट है, ठीक, 2 चॉकलेट है, आपके पास 10 रुपीज़ है। आपको क्या करना है? आप शॉप पे जाओगे, आपको परचेज़ करना है। पहले आप क्या कर रहे थे? एक चॉकलेट को परचेज़ कर रहे थे, आप किट कैट ले रहे थे 10 रुपीज़ वाली। बट आपको एक ये डिमांड हो गई कि अब आपको ये है कि स्कूल खुल गया है, अब हमारे पास पेन नहीं है। अब उसी 10 रुपीज़ में अब आपके पास ये जो रिसोर्स क्या हो गया? 10 रुपीज़। ये 10 रुपीज़ आपकी रिसोर्स हो गई, और ये क्या है? स्कैर्स है। मतलब आपके पास लिमिटेड अमाउंट है 10, आप इससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकते। अब आप इसी 10 रुपीज़ को प्रॉपरली एलोकेट करोगे। आप क्या एलोकेट करोगे कि इसी 10 रुपीज़ को हम कैसे यूटिलाइज़ करें कि हम चॉकलेट भी खरीद लें और पेन भी खरीद लें। ठीक है, कि हम चॉकलेट भी कंज्यूम कर ले एज वेल एज पेन भी परचेज़ करें। तो इसी कंडीशन पे वो क्या करेगा? मे बी वो 7 रुपीज़ की क्या कर लेगा, या 8 रुपीज़ की चॉकलेट खरीद लेगा, या 5 रुपीज़ की चॉकलेट खरीद लेगा और 5 रुपीज़ की वो पेन खरीद लेगा। तो यहाँ पे आपका रिसोर्स क्या हुआ? 10 रुपीज़ आपका रिसोर्स हुआ, जो क्या है? वो स्कैर्स है, वो बहुत कम है, और आपको ऐसे कमोडिटी को और ऐसे रिसोर्सेज को एलोकेट करना है जिससे आप मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, आप एज अ कंज्यूमर अपनी सेटिस्फैक्शन सेटिस्फाई कर लिए कि नहीं? आपको फुलफिल हो गया ना? आपको यही 2 कमोडिटी परचेज़ करना था, आपने परचेज़ करना। ठीक है, यही होता है कि इकोनॉमिक्स इज़ अबाउट मेकिंग चॉइस को मेक करना इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैर्सिटी। जब आपको पता है रिसोर्सेज क्या हैं
रिसोर्सेज ऐसा नहीं है कि हैं, बट वो क्या है, वो स्कैर्स रिसोर्सेज है, बहुत कम रिसोर्सेज हैं। और उन्हीं स्कैर्स रिसोर्सेज में हमको क्या करना है, एक चॉइस करना है। मतलब अब हमें अगर डिफरेंट है, गुड्स है, जो भी रिसोर्सेज है स्कैर्स है, उन्हीं में से एक बेस्ट चॉइस लेना है कि हम कैसे इन कमोडिटी को परचेज भी कर ले और एज अ कंज्यूमर हम मैक्सिमाइज़ कर ले अपनी सेटिस्फेक्शन को, एज अ प्रोड्यूसर हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर ले, एंड एज अ सोसाइटी हम सोशल वेलफेयर को। ठीक है, तो सिंपल है ना ये कि एक चॉइस को मेक करना व्हेन द रिसोर्सेज आर स्कैर्स। ओके, अब जब अबंडेंट होगा आपके पास, ये बोला जाए कि आपको कोई भी, आपके पास कोई लिमिट नहीं है, आपके पास जितनी मन करे चॉकलेट खाओ, जितनी मन करे आप चॉकलेट खाओ, एज वेल एज पेन खरीदो, कॉपी खरीदो, आपको जो टॉफ़ी खरीदना है खरीदो, ये आपके ऊपर है। तो अब आप क्या करोगे, अबंडेंट रिसोर्सेज हैं, आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, आपको जितना कमोडिटी परचेज़ करना है तो आप तो कुछ भी परचेज़ कर लोगे। बट नहीं, इकोनॉमिक्स क्या कहता है, इकोनॉमिक्स में हम उसी की स्टडी करते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास वो स्कैर्स हैं, वो लिमिटेड अमाउंट में। अब ये आपके ऊपर है कि आप कैसी चॉइस उसमें क्रिएट करें, आपके ऊपर है कि आप कितना बेस्ट चॉइस ले रहे हो जब रिसोर्सेज आपके पास स्कैर्स। ओके, सो अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, ये क्या करता है, इकोनॉमिक्स क्या है। अभी तक देखिए मार्शल के अकॉर्डिंग क्या था कि इकोनॉमिक्स को हम लोग सोशल साइंस की तरह ले रहे थे कि इकोनॉमिक्स क्या है, सोशल साइंस। अब रॉबिन्स हैं जो दूसरे क्या हैं, एक वो हैं इकोनॉमिक्स हैं, वो ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, वो साइंस है जिसमें क्या करते हैं, विच स्टडीड द ह्यूमन बिहेवियर, जिसमें हम ह्यूमन के बिहेवियर की स्टडी करते हैं एज अ रिलेशनशिप, किसके रिलेशनशिप में, बिटवीन द एंड एंड द स्कैर्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, हम किसके बीच में रिलेशनशिप पढ़ते हैं कि जो रिसोर्सेज हमारे पास क्या हैं, स्कैर्स हैं, और जिसके क्या हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। मतलब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और एज वेल एज कि आपके पास उतने ही रिसोर्सेज हैं। अब आप क्या करोगे, उसी रिसोर्सेज में अगर आपके पास 10 रुपीज़ है तो अब आपके पास आप क्या करोगे, आप ऑल्टरनेटिव पे जाओगे, क्योंकि रिसोर्सेज आपके लिमिटेड ही हैं। आप ऑल्टरनेटिव मीन्स अब छोड़ो चॉकलेट नहीं खाऊंगी, इस बार मैं क्या करती हूँ 2 पेन खरीद लेती हूँ 5 रुपीज़ की, एक ब्लू पेन, एक ब्लैक पेन। तो ये आपका क्या हुआ, रिसोर्सेज आपके क्या हो गया, स्कैर्स मीन्स एंड। तो ये क्या हो गया, इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करें जिसमें एज अ रिलेशन, किसके बीच में रिलेशन करें, बिटवीन एंड्स एंड द स्कैर्स मीन्स। मतलब जो रिसोर्सेज हमारे वो एंड एकदम है और स्कैर्स मीन्स है, जिसको हमको प्रॉपरली उन रिसोर्सेज को क्या करना है, ऐसे यूटिलाइज करना है विच हैव एन ऑल्टरनेटिव यूज़, जिसका क्या है, एक ऑल्टरनेटिव यूज़ है। अब हम 10 रुपीज़ की चॉकलेट परचेज़ ना करके हम 5 रुपीज़ की ब्लू और ब्लैक पेन परचेज़ करें। ठीक है, रिसोर्सेज तो क्या हुआ, सेम ही रिसोर्सेज हुआ। अब हम इनको इसका ऑल्टरनेटिव को सर्च करेंगे। जैसे हम लोगों ने क्या किया था, पढ़ा था ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, फ्रंटायर, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था ना, जिसमें ये देखा था कि हम लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई सेक्रीफाइस करके, कुछ एक यूनिट को सेक्रीफाइस करके कुछ गेन करते हैं। तो यही होता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यही क्या है, इकोनॉमिक्स में भी है कि जो रिसोर्सेज हमारे पास स्कैर्स मीन्स में हैं, स्कैर्स हैं, तो उसको क्या करना है, ऐसे हमें यूटिलाइज़ करना है या हमको उनका एक ऑल्टरनेटिव देखना है। हम उसको अगर नहीं परचेज़ कर सकते, फॉर एग्जांपल आपके पास 4000 रुपीज़ है, आपको क्या करना है, या तो आप एक ड्रेस परचेज़ करो, या तो आपको क्या है कि आपको अपनी बुक परचेज़ करनी है। मतलब आप क्लास 11th में गए, आपको बुक परचेज़ करनी है और रक्षाबंधन आ रहा है। अब आपके पास ये ऑप्शन है कि आप क्या करोगे। इस टाइम आप क्या देखोगे, ऑल्टरनेटिव यूज़ देखोगे। आप ये सोचोगे कि रक्षाबंधन के लिए ड्रेस से खरीदने से अच्छा है कि हम बुक परचेज़ करें, जो हमारे पूरे होल द ईयर काम आएगी और कुछ ना कुछ ये प्रोडक्टिव होगा। मे बी किसी के लिए ऑल्टरनेटिव यूज़ क्या हो जाएगा कि छोड़ो बुक का क्या करना है, हम क्लोथ ही परचेज़ कर लेते हैं। तो ये क्या है कि हम हमेशा कुछ ऑल्टरनेटिव पे ही जाते हैं, इसलिए क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, बस 4000 ही रुपीज़ है। अगर आपके पास ये होता कि आपके पास 20,000 है, तो आप क्या करते, बुक भी परचेज़ कर लेते
अगर अगर आपके पास 4000 की बुक होती है, बुक कॉपी पेन सबके साथ, और आप कुछ 3000 का ड्रेस परचेज कर लेते, तो भी आपके पास 13,000 आपके पास अभी भी अमाउंट बचता। तो ये क्या हो गया कि आपके पास रिसोर्सेज की कोई लैकनेस नहीं है, रिसोर्स अबंडेंट अमाउंट में है। तो यहाँ पे क्या है कि हम ऑल्टरनेटिव्स पे नहीं जाएंगे, हम ऑल्टरनेटिव पे तभी जाएंगे जब हमारे पास रिसोर्सेज स्कैर्स होंगे। तो इकोनॉमिक्स हमें क्या बताता है? इकोनॉमिक्स यही बोलता है कि वी विल गो थ्रू दी ऑल्टरनेटिव यूज और दी मेक दी चॉइस व्हेन द रिसोर्सेज आर स्कैर्स और व्हेन द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कि हम लोग हमेशा उस पे जाएंगे जहाँ पे रिसोर्सेज क्या हों, वो लिमिटेड हो। रिसोर्सेज हमें लिमिटेड मिले हैं, उनको हमें क्या करना है, प्रॉपरली यूटिलाइज करके अपनी नीड्स को मैक्सिमाइज करना है। एज अ कंज्यूमर वी विल मैक्सिमाइज आवर सेटिस्फेक्शन, एज अ प्रोड्यूसर वी विल मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिट, एज अ सोसाइटी वी विल मैक्सिमाइज द social welfare. Okay, so it's all about your today's class. We will continue further in the next class. Okay, thank you.